Hello, students. A very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next chapter of your syllabus. The name of the chapter is carbon compounds. So, today we are going to start our last chapter of your chemistry. The name of the chapter is carbon compounds. So, in the chapter, we'll discuss about the following important concept like bonds in the carbon compounds, carbon versatile element, hydrocarbons, type of hydrocarbons, functional groups, and homologous series, nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, and micromolecules and the polymers. तो इस चैप्टर में हमें बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद हमें डिस्कशन करना है कार्बन को क्यों वर्साटाइल एलिमेंट कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन का क्या मीनिंग रहेगा, उसके क्या क्या टाइप्स रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या है। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, what are the chemical properties of carbon compounds, and last one concept is macromolecules and the polymers. तो चैप्टर में हमें इन कंसेप्ट के बारे में क्या है डिस्कशन कर लेना है. So today in this session we will discuss what is the meaning of compounds, types of compounds with example, what is the meaning of a chemical bond, what are the types of chemical bond, and bonds in a carbon compound, and what are the properties of carbon compounds. And why carbon is called as the versatile element. तो आज के सेशन में इन कंसेप्ट के बारे में हमें क्या है डिस्कशन कर लेना है. So start today's session. First, what is the meaning of compounds? A thing that is composed of two or more different kinds of element is called as a compound. A thing that is composed of two or more different kinds of element is called as a compound. There are two types of a compound. One is organic compounds and next one is inorganic compounds. ध्यान में रखिए दो प्रकार के क्या रहेंगे कंपाउंड्स रहेंगे. तो फर्स्ट हमें डिस्कशन कर लेना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंपाउंड. ध्यान में रखिए a thing that is composed of two or more different elements. जो चीजें दो अलग अलग एलिमेंट से बनाई जाती है या बन जाती है उसको हमें क्या कहना है कंपाउंड्स कहना है. Now see, there are two types of compounds. One is organic compounds. First one is organic compounds and next one is inorganic compound. Understand? There are two kinds of compounds. One is organic compounds and next one is inorganic compounds. Now see, in generally, in chemistry, the organic compounds are the chemical compounds that contain carbon hydrogen bonds. तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है बोलो तो इट इज अ केमिकल बॉन्ड्स दैट कंटेन कार्बन एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के क्या रहना बोलो तो बॉन्ड्स रहना उसको हमें क्या कहना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहना है. टेक द सिंपल एग्जांपल इज कार्बोहाइड्रेट्स. उसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, अपना प्रोटीन्स, अंडरस्टैंड, एंड न्यूक्लिक एसिड. वैसे बहुत सारे उसके क्या बोलते हो एग्जांपल्स है. अंडरस्टैंड? In chemistry, organic compounds are generally a chemical compounds that contain carbon and hydrogen bonds are called as the organic compounds. For example, carbohydrates, protein, and the nucleic acid. Next one, see what is the meaning of inorganic compounds. A chemical compound that lack of a carbon or hydrogen bond. एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स क्या रहना तो अब्सेंट रहना, लैक्स रहना, उसको हमें क्या कहना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहना है. ए केमिकल कंपाउंड दैट लैक्स आर carbon and hydrogen bonds are called as the inorganic compounds. Take the simple example is carbon dioxide,
हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो बहुत सारे ऐसे उसके क्या रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड्स एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स? A thing that is composed of two or more different elements are called as the compounds. There are two kinds of compounds in a chemistry. One is organic compounds and next one is inorganic compounds. In chemistry, organic compounds generally are the chemical compounds that contain carbon hydrogen bonds are called as the organic compounds. And take the example of organic compounds are the carbohydrates, protein and the nucleic acids. The next one type is inorganic compounds. Inorganic compounds are the chemical compounds lack of a carbon or hydrogen bond is called as the inorganic compounds. Take the simple example is carbon dioxide, water. तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स का रहना हो तो absent रहना, उसको हमें क्या कहना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहना है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? नेक्स्ट वन concept see what is the meaning of a chemical compounds, sorry chemical bonds. तो केमिकल बॉन्ड बोलते हैं क्या, इसके बारे में हमें अब डिस्कशन कर लेना है। Next one, see what is the meaning of a chemical bond. Next one concept is what is the meaning of chemical bonds. Now see, a chemical bond is attraction between atoms, ions or molecules that enables the formation of chemical bonds. Now see, so chemical bond is a attraction between ions, atoms or molecules that enable the formation of a chemical bond या chemical compounds. The chemical bond क्या होता है, is the force of attraction between the ions that is present in the compound. Understand? जिस एटम्स में हो या मॉलिक्यूल्स में हो या किसी कंपाउंड में जो आयन्स रहते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको हमें क्या कहना है, केमिकल बॉन्ड कहना है। इट इज कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्ड। अंडरस्टैंड? अ बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड इज अ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयन्स, atoms or molecules that enables the formation of a chemical compound. तो जब आयन्स का अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन होने के बाद ही एक केमिकल कंपाउंड्स क्या हो तो रेडी हो जाता है। मतलब अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड इज अ अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ टू आयन्स या टू मॉलिक्यूल्स या और एटम्स। जब भी अट्रैक्शन हो जाएगा उनसे क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड क्या है, रेडी हो जाता है। नाउ सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ध्यान में रखिए। वन इज आयोनिक बॉन्ड, one is a ionic bond and next one is a covalent bond. There are two kinds of bonds, one is a ionic bond and next one is a covalent bond. तो केमिकल बॉन्ड्स के क्या रहेंगे, दो प्रकार रहेंगे, एक रहेगा अपना आयोनिक बॉन्ड और नेक्स्ट रहेगा अपना कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ सी the electrostatic bonds between two ions formed through the transfer of one or more electrons. Now see, the electrostatic bonds between the two ions formed through the transfer of one or more electrons. ध्यान में रखिए, the electrostatic bond between दो आयन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स रहता है उसको हमें क्या कहना बोले तो आयोनिक बॉन्ड कहना है। द बॉन्ड बिटवीन टू आयन्स, which bond? Electrostatic bond is called as the ionic bond. The electrostatic bond between the two ions, दो आयन्स के बीच में दो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स रहता है उसको हमें क्या कहना है, आयोनिक बॉन्ड कहना है। नाउ नेक्स्ट वन सी व्हाट इज मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड। हम डिस्कशन कर लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। नाउ सी अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग of a two valence electron between the two atoms is called as the covalent bond. Now see, covalent bond is a chemical bond formed by the sharing of two electrons, two valence electrons between the two atoms. दो atoms के बीच में
जब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, शेयर करते समय क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, रेडी हो जाता है। लिसन, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of two valence electrons between the two atoms। दो एटम्स के बीच में जब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, शेयर करने के बाद जो बॉन्ड रेडी होता है उसको हमें क्या कहना है, कोवैलेंट बॉन्ड कहना है। अ केमिकल बॉन्ड that is formed after the sharing of two valence electrons between the two atoms। दो एटम के बीच में जब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद जो एक बॉन्ड रेडी होता है उसको हमें क्या कहना है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कहना है। Understand what is the meaning of ionic bond and the covalent bond? Now see, next one concept is bonds in a carbon compounds। या what are the properties of carbon compounds, हम डिस्कशन कर लेंगे। What are the properties of carbon compounds? What are the properties of carbon compounds? Properties of carbon compounds. Properties of carbon compounds. Now see. So what are the properties of carbon compounds? Generally, the melting and the boiling points of carbon compounds are found to be lower than 300 degrees Celsius. Now see, generally, the melting and the boiling points of all the carbon compounds are found lower than 300 degree Celsius। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उन कार्बन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है क्या बोलो तो लोअर देन कितना बोलो तो 300 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम इसमें इजीली लिख सकते हैं द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड, जनरली all the carbon compounds have the low melting and boiling point। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो तो 300 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है। Understand, generally the melting and the boiling points of all the carbon compounds are found lower than 300 डिग्री सेल्सियस। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो तो 300 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है। नेक्स्ट वन, generally most of the carbon compounds are found to be bad conductor of electricity। Generally most of the carbon compounds are a bad conductor of electricity। There is no transformation of electrical energy through the carbon compounds। तो कार्बन कंपाउंड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो तो ट्रांसफर नहीं होती है। दैट्स व्हाई ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस वन इज अ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। Generally, all the carbon compounds are the bad conductor of electricity because electric current is not transferred through the carbon compounds। कार्बन कंपाउंड से इलेक्ट्रिकल करंट क्या बोलो तो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसके कारण कार्बन कंपाउंड्स को क्या बोलो तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। लास्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कार्बन कंपाउंड्स सॉरी केमिकल बॉन्ड्स इन द कार्बन कंपाउंड्स not produce ions। Now see, the chemical bonds that is present in the carbon compounds not produce the ions। जो कार्बन कंपाउंड्स में जो केमिकल बॉन्ड्स रहते हैं वो बॉन्ड्स क्या बोलते हैं आयन को क्या है प्रोड्यूस नहीं करते। अंडरस्टैंड, द केमिकल बॉन्ड्स दैट इज प्रेजेंट इन द कार्बन कंपाउंड्स नॉट प्रोड्यूस द आयन्स। जितनी भी केमिकल बॉन्ड्स कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे वो क्या बोलो तो आयन्स को क्या है प्रोड्यूस नहीं करते। These are the properties of a carbon compound। The first one property, melting and boiling points of a carbon compound is low। ध्यान में रखिए कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या बोलो तो बहुत ही क्या रहता है, लो रहता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। नेक्स्ट वन, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, bad conductor of electricity। Bad conductor of electricity। Last one property, now see,
chemical bond not produce the ions. Chemical bond not produce ions. जो केमिकल बॉन्ड्स कार्बन कंपाउंड में रहते हैं वो आयंस को क्या तो प्रोड्यूस नहीं करते. केमिकल बॉन्ड नॉट प्रोड्यूस आयंस. Listen, so these are the properties of carbon compounds. Now next we'll see why carbon is called as the versatile element. कार्बन को versatile element क्यों कहा जाता है? What is the reason behind this? Why carbon is called as the versatile elements? Now see. Why carbon is called as a versatile element? Also, carbon can form a large number of compounds. कार्बन के हम लोग तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स के बना सकते हैं. इसके पीछे क्या रीजन है? तो 5 कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एज वर्सटाइल एलिमेंट. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन? फर्स्ट हम डिस्कशन कर लेंगे व्हाई कार्बन इज कॉल्ड एज वर्सटाइल एलिमेंट. नाउ सी, atomic number of carbon is 6 and its electronic configuration is 2,4. Now see, atomic number of carbon is 6 and the electronic configuration of carbon is 2,4 and number of electrons in the valence shell is 4. Now see, ध्यान में रखिए, the atomic number of carbon is 6, the electronic configuration of carbon is 2,4 and the valency of carbon is 4. Listen, the number of electrons in the valence shell. तो valence shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? 2,4 रहेगा. एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इज 4. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 6 रहेगा. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2,4 रहेगा और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? तो 4 रहेंगे. नेक्स्ट नाउ सी, an atom of carbon has 4 valence electrons. Now see, and the atom of carbon has 4 electrons. जो कार्बन का जो एक एटम्स रहता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. Listen, an atom of carbon contains the 4 valence electron. It can share the electrons with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. Now see, so carbon share the electrons with the हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द सल्फर. ध्यान में रखिए, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ शेयर करता है? वन इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द सल्फर. अंडरस्टैंड? एंड एटम ऑफ कार्बन कंटेन द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो कार्बन का एक जो एटम रहता है उसके पास क्या होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहता है. एंड दीज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बाय कार्बन विथ हाइड्रोजन, with oxygen, with nitrogen and with sulfur. यही 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर करता है? तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और नाइट्रोजन एंड सल्फर के साथ वो शेयर करता है. नाउ सी, कार्बन आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है. बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट कैन फॉर्म ए वैरायटी ऑफ चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर. नाउ सी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटिनेशन पावर, so carbon form a variety of a chain and ring structure. जो कार्बन के पास जो कैटिनेशन पावर है इसके कारण कार्बन के क्या होते बहुत सारे रिंग और क्या है ऐसे चेन स्ट्रक्चर भी क्या है बन सकते हैं विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड द मॉलिक्यूल्स मासेस. उसका जो क्या होता है अलग अलग शेप, अलग अलग उसका साइज भी क्या है बन सकता है. Thus कार्बन कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. इसलिए तो कार्बन से क्या होता है बहुत सारे कंपाउंड्स क्या है बना सकते हैं. नाउ सी, द एंटायर किंगडम is made with the help of only carbon molecules. जितनी भी पूरे विश्व है, पूरी दुनिया है, वो किससे बनी से बोलो तो कार्बन मॉलिक्यूल से क्या है बनी हुई. और बॉडी इज आल्सो मेड फ्रॉम द कार्बन. ध्यान में रखिए, और बॉडी इज आल्सो मेड फ्रॉम द कार्बन. Billions of molecules ranging from the small and the simple methane molecules to extremely big DNA molecule are made from a carbon. Now see, the DNA molecule is made from the only carbon when the number of a simple and small and the simple methane are combined to each other to form the one large DNA molecule. जब स्मॉल और बहुत सारे ऐसे मिथेन के मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं तब एक डीएनए का मॉलिक्यूल क्या तो रेडी हो जाता है.
नाउ सी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन कंपाउंड रेज अप टू 10^12, ध्यान में रखिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स अप टू 10^12, जो मॉलिक्यूलर मास है किसका, कार्बन कंपाउंड का, वो कितना बोलो तो 10^12 है. दिस मीन्स दैट द कार्बन आइटम्स कम टुगेदर इन लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉम एक्सट्रीमली बिग मॉलिक्यूल्स. जब बहुत सारे ऐसे कार्बन आइटम्स एक साथ आएंगे तो एक बहुत बड़ा कार्बन का मॉलिक्यूल्स क्या हो तो रेडी हो जाता है. अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई कार्बन इज कॉल्ड द वर्साटाइल एलिमेंट. इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है बोलो तो वर्साटाइल एलिमेंट क्या है कहा जाता है. अंडरस्टैंड, और बॉडी इज मेड विद द हेल्प ऑफ ओनली कार्बन. When small and the number of carbon atoms combine to each other to form the one big DNA molecule. बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल जब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तब एक डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो तो रेडी हो जाता है. एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज 10^12. Understand? That's why carbon is called as the versatile element. Now see the next one. What are the characteristics of carbon? कार्बन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे. Now see what are the characteristics of carbon? कार्बन की क्या क्या कैरेक्टर्स रहेंगे. Now see characteristics of carbon. Characteristics of carbon. Now see first one character. Carbon has an ability to form a strong covalent bonds with other carbon atoms. Now see कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है वो दूसरे कार्बन के साथ क्या हो तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स को क्या कर सकता है रेडी कर सकता है. अंडरस्टैंड, सो कार्बन हैज अनक्यू एबिलिटी टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन आइटम्स. वो अदर या दूसरे कार्बन आइटम के साथ अपना क्या हो तो स्ट्रॉन्ग क्या है कोवेलेंट बॉन्ड को रेडी कर सकता है. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बिग मॉलिक्यूल. जब स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा अदर कार्बन के साथ तो वहां पर एक क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल क्या हो तो रेडी हो जाता है. अंडरस्टैंड फर्स्ट वन प्रॉपर्टी. कार्बन हैज अनक्यू एबिलिटी टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन्स. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल या ना बिग मॉलिक्यूल. जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड रेडी करता है. रेडी करने के बाद एक बिग मॉलिक्यूल्स क्या हो तो रेडी हो जाता है. दिस वन इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. क्या उसका फर्स्ट पार्ट इसे बोल तो नाउ सी टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. दूसरों के साथ क्या करना हो तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स को क्या करना है रेडी करना है. स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन्स with other carbon atoms. Next one, now see two carbon atoms can be bonded together by 1, 2 or 3 covalent bonds. Now see these are called as single bond, double bond or triple bond. Now see two carbon atoms can be bonded together with the help of a single bond, with the help of a double bond, with the help of a triple bond. Now see these are the two carbon atoms. So these two carbon atoms can be bonded together with a single bond, yeah, bonded together with a double bond, bonded together with a triple bond. जो दो कार्बन आइटम्स रहते हैं दो कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड रहेगा या तो डबल बॉन्ड रहेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. अंडरस्टैंड, टू कार्बन आइटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय 1, 2 or 3 bonds and these bonds are called as the single bond, double bond or triple bond. Now see next one property. Being tetravalent, one carbon atom can be formed bonds with 4 other atoms. ध्यान में रखिए. Now see being tetravalent, one carbon atom can form bonds with the 4 atoms. एक कार्बन आइटम्स क्या बोलो तो 4 आइटम के साथ क्या कर सकता है बॉन्ड को क्या है रेडी कर सकता है. So one carbon atom can form bonds with 4 atoms. एक जो कार्बन का आइटम्स रहता है वो 4 आइटम्स के साथ क्या तो बॉन्ड्स को क्या है रेडी कर सकता है. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स. तो इससे क्या बोलते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स क्या है रेडी क्या है हो जाते हैं. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. अंडरस्टैंड, तो ये क्या होता है अपने क्या है कार्बन के क्या है प्रॉपर्टीज है. नेक्स्ट वन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. और डिस्कशन कर लेंगे व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या रहेंगे.
इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है। नाउ सी नेक्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स। Next one is hydrocarbons. नेक्स्ट वन कंसेप्ट इज हाइड्रोकार्बन्स। उसके नाम में ही उसका क्या है, नाम ये रहता है हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान में रखिए, द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एट द ओनली एलिमेंट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन्स। जिस कंपाउंड में ओनली हाइड्रोजन और क्या बोलते तो अपना क्या रहेगा, कार्बन एलिमेंट्स रहेंगे, उसको हमें क्या कहना है, हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स विच ओनली कंटेन carbon and the hydrogen as a only element is called as the hydrocarbon। जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ही एलिमेंट रहेंगे उसको हमें क्या कहना है, हाइड्रोकार्बन्स कहना है। हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान में रखिए, हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So hydrocarbons are the very simplest and the fundamental ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या बोलते हो, सिंपलेस्ट और फंडामेंटल क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर द वेरी सिंपलेस्ट एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। नाउ सी द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कार्बन आइटम्स। ध्यान में रखिए, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कार्बन आइटम्स विथ 4 हाइड्रोजन आइटम्स। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बोलते, एक कार्बन क्या बोलते 4 हाइड्रोजन आइटम के साथ क्या है, बॉन्डिंग करता है। लिसन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कार्बन आइटम्स विथ 4 हाइड्रोजन आइटम। एक जो कार्बन का आइटम्स है वो कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शेयर कर रहा है, बोलते 4 हाइड्रोजन आइटम के साथ क्या कर रहा है, वो बॉन्ड्स को क्या है, शेयर कर रहा है। Understand? Hydrocarbons. Next one, see two types of hydrocarbons. One is a saturated and next one is unsaturated hydrocarbons. तो यहाँ पर क्या रहेंगे, 2 प्रकार के क्या है, हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे। एक रहेगा अपना नेक्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन्स, saturated hydrocarbons and the unsaturated hydrocarbons. Next one is types of hydrocarbons. Next one, types of hydrocarbons. Types of hydrocarbons. There are 2 types of hydrocarbons. One is saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. Next one, unsaturated hydrocarbons. Now see, the types of hydrocarbons depending upon the how many bonds are present in the two carbon atoms. जो हाइड्रोकार्बन्स के जो टाइप्स है किसके ऊपर डिपेंड है, तो 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसके ऊपर उनका क्या रहेगा, टाइप्स क्या बोलो तो डिपेंड रहेंगे। नाउ सी हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन आइटम्स आर लिंक्ड विथ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान में रखिए। नाउ सी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव द ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स। 2 कार्बन के बीच में क्या बोलो तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहना, उसको हमें क्या कहना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहना है। एंड द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन आइटम्स लिंक्ड विथ डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड, या वो डबल बॉन्ड रहेंगे या वो ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, 2 कार्बन का, इसको हमें क्या कहना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अंडरस्टैंड? The types of hydrocarbons are mainly depending upon the presence of bonds between 2 carbons. Now see first saturated hydrocarbons. So it's a type of hydrocarbons in which only single bond is present between 2 carbon atoms. 2 कार्बन के बीच में क्या होता है, only single bond present, उसको हमें क्या कहना है,
सैचुरेटेड कहना है एंड नेक्स्ट वन इज unsaturated hydrocarbons type of hydrocarbons in which carbon atoms linked with double bond और triple bond, या तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे. ओके, टुडे स्टॉप वी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन. स्टे सेफ, stay indoors from Unicef Public School और शहजाद.